My lovely students, welcome to Mathological. This is the 8th session of CAT DLR series. Start करते हैं session को. And if you have not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe. Also press the bell icon. And you can message me on Telegram at ADITYKD for any questions or queries regarding your preparation. I hope तुम इन sessions को check out कर रहे होगे. And this is the set for today, followed by 5 questions in total. So pause the video, try to solve it yourself, then only watch the solution. Let us read the set first. 4 badminton players, Anish, Bharat, Chetan, and Deep, participated in Palampur Premier Badminton League. Every player played one match against every other player. Each match consisted of exactly 3 games. A player won the match if they won at least 2 out of the 3 games. Okay, there are 4 players in total, Anish, Bharat, Chetan, and Deep, who participated in the Palampur Premier Badminton League. Every player played one match against every other player. तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? 4 प्लेयर्स हैं, हमें पेयर्स बनाने हैं इनके और सारे पेयर्स के बीच में मैच होगा, तो इफेक्टिवली टोटल मैचेस विल बी 4c2. या फिर कह सकते हैं सिंस देयर आर 4 प्लेयर्स, एवरी प्लेयर विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रिमेनिंग 3 प्लेयर्स, तो 4 into 3, और क्योंकि डबल काउंटिंग हुआ डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा टोटल 6 मैचेस. तो टोटल मैचेस प्लेड विल बी 6. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इनको ऑर्डर करेंगे तो ए बी का मैच होगा, ए सी, ए डी, एंड सिमिलरली बी सी का मैच होगा, बी डी का मैच होगा, और फाइनली सी डी का मैच होगा. टोटल 6 मैचेस होंगे. देन क्वेश्चन इज सेइंग एवरी मैच कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गेम्स. क्योंकि बैडमिंटन का मैच है तो हर एक मैच कंसिस्ट करेगा 3 गेम्स का. ठीक है, सो एवरी मैच कंसिस्ट ऑफ 3 गेम्स. अ प्लेयर वॉन द मैच इफ दे वॉन एट लीस्ट 2 आउट ऑफ द 3 गेम्स. So if a player wins 2 games out of 3, he wins the match. Or if he wins all 3 games in that match. Minimum 2 games in a match he must win in order to win that particular match. There were no ties in any individual game or a match. तो कोई भी मैच, हर एक मैच का रिजल्ट आया है, either a team has won, definitely the second team must have lost, और एंड गेम के 2 सिनेरियो होंगे, 2-1 होगा या फिर 3-0 होगा. मतलब कि किसी भी मैच का रिजल्ट या तो स्कोर लाइन हमारा 2-1 होगा या फिर ओवरऑल 3-0 होगा फॉर एनी मैच. Because no match has ended in a tie. No game also has ended in a tie. If a player won the match 3-0, 5 points were awarded to the winner and loser got 0 points. If the player won the match 2-1, in that case 3 points were awarded to him and 1 to the loser. So in case of this 2-1 wala scenario, winner gets 3 points and loser gets 1 point. But in case of 3-0 wala scenario, winner gets 5 points and loser gets 0. यानी कि overall distribution in case of 3-0 is of 5 points, but that in case of 2-1 is that of total 4 points. कंडीशंस को देखते हैं. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अनीश, भारत, चेतन एंड दीप formed a decreasing arithmetic progression in that order. Okay. Second condition, the total number of matches in the tournament that ended with the 3-0 score line was twice that of number of matches that ended with the 2-1 score line. Total matches हुए 6, और given condition ये है कि matches that ended with the 3-0 score line are double that of matches that ended with 2-1 score line. तो अगर A matches end हुए होंगे 3-0 स्कोर लाइन, बी मैचेस एंड होंगे 2-1 स्कोर लाइन से, तो ए इज इक्वल टू 2b, एंड वी नो दैट a प्लस b दैट इज इक्वल टू 6, और a इज इक्वल टू 2b है तो 3b इक्वल टू 6 आ गया. यहाँ से b का वैल्यू आ गया 2, यानी कि देयर आर एग्जैक्टली 4 मैचेस which ended with a 3-0 score line and 2 matches which ended with a 2-1 score line. Now why is this important? Because points पे differ करेगा ना, because points in a 3-0 match are total 5 points are distributed and points in a 2-1 match total points distributed are equal to 4. तो total number of points क्या हो जाएंगे? Sum of all the points of A, B, C, D, अनीश, भारत, चेतन एंड दीप, that will be equal to, क्योंकि 4 मैचेस हैं with 3-0 यानी कि 4 into 5 points will be distributed for those 4 matches plus remaining 2 matches. You have 4 points for those 2 matches. So 20 plus 8, 28 points in total. So 28 points have been distributed between A, B, C and D. Okay. And since their points are also forming a decreasing AP फॉर्म कर रहे हैं, तो एवरेज मिल जाएगा 28 पॉइंट से. बिकॉज 4 प्लेयर्स हैं, सम आ रहा है उनका 28 पॉइंट्स, तो एवरेज विल बी इक्वल टू 7. एवरेज पॉइंट्स आर 7. तो इफ एवरेज पॉइंट्स आर इक्वल टू 7, तो इन दैट केस पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है हमारा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इंटीजर में होंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहे हैं, या तो 1 पॉइंट मिल रहा है, 3 मिल रहा है, या 5 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो टोटल सम विल ऑलवेज बी इंटीजर. सो 7 हमारा एवरेज आ रहा है, तो या तो 7 प्लस 1 यानी कि 8 पॉइंट्स विल बी फॉर, सॉरी सी के पॉइंट्स 8 नहीं होंगे बिकॉज डिक्रीजिंग एपी है, तो 7 प्लस 1 8 पॉइंट्स विल बी फॉर बी, और 7 minus 1
6 पॉइंट्स विल बी फॉर सी। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 8 पॉइंट्स आ रहे हैं बी के, सी के आ रहे हैं 6 पॉइंट्स, तो डी के पॉइंट्स आ जाएंगे 4 और ए के पॉइंट्स आ जाएंगे 10। पहला सिनेरियो ये बन सकता है 10 8 6 4 वाला। सेकंड केस क्या बन सकता है कि अगर हम करते हैं 7 माइनस 2 यानी कि 5 पॉइंट्स फॉर सी, तो 7 प्लस 2 9 पॉइंट्स विल बी फॉर बी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? हमारा गैप आ रहा है 4 का, 9 और 5 में गैप आ रहा है 4 का, तो 9 प्लस 4 13 पॉइंट्स फॉर ए और 5 माइनस 4 1 पॉइंट्स फॉर डी। यही दो केसेस पॉसिबल है, बिकॉज अगर हम कॉमन डिफरेंस और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, पहले केस में 2 था फिर 4 हुआ, तो अब हमारे डी के पॉइंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम पॉइंट्स फॉर एनी प्लेयर कैन बी 0। तो पॉसिबल ही नहीं है इसके अलावा कोई भी और केस। ये दो केसेस हमारे पास पॉसिबल है। क्या इतनी बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, यही दो केसेस हमारे पास, वही दो सिनेरियो हमारे पास पॉसिबल है। अब इसके बाद में एक बात और सोचो कि क्या 13 पॉइंट्स आ सकते हैं किसी प्लेयर के? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। 13 पॉइंट्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि ए अगर अपने 2 मैचेस जीत जाए विथ 3-0 स्कोर लाइन, और एक मैच जीत जाए विथ 2-1 स्कोर लाइन, तो 5 प्लस 5 प्लस 3 13 पॉइंट्स आर डेफिनेटली पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। सिमिलरली 9 पॉइंट्स भी पॉसिबल हो जाएगा, तो बाकी ये कहानी तो बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम बाकी कंडीशंस को भी पढ़ते हैं, शायद वहां से कुछ और हमें हिंट मिले। ठीक है, चेतन वॉन हिज मैच अगेंस्ट द प्लेयर हु फिनिश्ड विद द हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स। हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स किसके हैं? ए के हैं डेफिनेटली। तो चेतन वॉन हिज मैच अगेंस्ट अनीश, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, लास्ट कंडीशन, दीप वॉन एग्जैक्टली वन मैच इन द टूर्नामेंट विद अ 2-1 स्कोर लाइन। तो दीप वॉन एग्जैक्टली वन मैच। दीप हु इज द लोएस्ट स्कोरर also won one match. So if he has won one match, तो minimum points for him must be equal to कितना? 3 points होगा मिनिमम। और साथ में गिवन ये भी है कि मैच तो जीता ही जीता है, साथ में 2-1 स्कोर लाइन से जीता है, तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स मिला होगा फॉर दैट पर्टिकुलर मैच। तो इन दैट सिनेरियो दिस 13-9-5-1 वाला केस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज पॉइंट्स फॉर डीप मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस केस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि एक ही केस हमारा हो गया, दैट इज 10-8-6-4 वाला केस, कि अनीश मस्ट हैव स्कोर्ड 10 पॉइंट्स, भारत मस्ट हैव स्कोर्ड 8 पॉइंट्स, चेतन मस्ट हैव स्कोर्ड 6 एंड दीप मस्ट हैव स्कोर्ड 4। क्या यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब इसके बाद में हर एक मैच में क्या स्कोर आया होगा, ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमें इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि ABCD के नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 10 8 6 4 रिस्पेक्टिवली। एडिशनली 6 मैचेस हैं, तो डायरेक्टली मैचेस को लिख लेते हैं। AB का मैच होगा AC, AD, देन BC, BD एंड फाइनली CD। ओके, सो दीप वन वन मैच इन द टूर्नामेंट विद अ 2-1 स्कोर लाइन, बट कौन सा मैच जीता है वी हैव नो आइडिया। सो अभी हम दीप का वो मैच फिलअप तो नहीं कर पाएंगे, बट वी नो फॉर श्योर दैट चेतन वॉन द मैच अगेंस्ट द प्लेयर हु फिनिश्ड विद द हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स, यानी कि चेतन वॉन द मैच अगेंस्ट ए। तो AC मैच का स्कोर लाइन हमें पता है कि क्या होगा। स्कोर लाइन में दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो AC मैच का स्कोर लाइन होगा 1-2 बिकॉज सी हैज वॉन, और इट विल बी 0-3। दो केसेस पॉसिबल है। ओके, बट ए हैज वॉन टोटल 10 पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू 10, तो दो केसेस बनेंगे, या तो दिस विल बी 5 पॉइंट्स फॉर वन प्लस 5 फॉर द अदर, और क्या हो सकता है 5 फॉर वन मैच 3 फॉर अनदर, और फिर 2 और कैसे आएगा क्योंकि टोटल मैचेस तो 3 हैं। तो क्या ये सेकंड केस पॉसिबल है? क्योंकि 2 और 1-1 करके आ ही नहीं सकता, 4 मैचेस में आता है। 4 मैचेस में पॉसिबल होता है, बट 3 मैचेस में ये केस सेकंड वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज ओनली वन केस 5 एंड 5, देखिए ए मस्ट हैव वॉन 2 मैचेस विद अ व्हाइट वॉश 3-0 से जीता होगा, और एक मैच में 0 पॉइंट मिले होंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 0 दैट मस्ट बी द सिनेरियो। और जो मैच लूज किया है, यानी कि दैट वाज व्हाइट वॉश अगेंस्ट हिम, तो 0-3 must have been the score line in that particular match. C must have won that match with 3-0, और बचे हुए दोनों मैच ए ने व्हाइट वॉश किए होंगे 3-0 से। ए बी मैच 3-0 विल बी द स्कोर लाइन, और ए डी मैच 3-0 विल बी द स्कोर लाइन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो ए के तीनों मैच का हमें स्कोर लाइन पता चल गया, 3-0 3-0 फॉर ए वर्सेस बी एंड ए वर्सेस डी एंड ए वर्सेस सी में 0-3। अब बात करते हैं बी की। तो बी का स्कोर है हमारा, टोटल पॉइंट्स आए हैं 8। 8 कैसे आ सकते हैं? 3+3+2 अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि तीन ही मैचेस हैं, तो एक मैच में 5 पॉइंट्स मिले होंगे, एक में 3 पॉइंट्स मिले होंगे, और एक में 0 पॉइंट्स मिले होंगे। 5+3+0, ठीक है। 0 कहाँ पे मिले हैं? 0 अगेंस्ट ए, 3-0 वाला केस है, और एक में मिले होंगे 5 और एक में मिले होंगे 3। अब 5 कैसे मिले होंगे, 3 कैसे मिले होंगे? ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि दीप ने जो मैच जीता है, दीप हैज वॉन दैट मैच विद अ 2-1 स्कोर लाइन, लेकिन दैट मैच दीप मस्ट हैव स्कोर्ड 3 पॉइंट्स एंड द लूजर मस्ट हैव स्कोर्ड 1 पॉइंट। और वो 1 पॉइंट ना तो ए को मिला है ऑब्वियसली, क्योंकि ए तो अपने दोनों मैच जीता ही है सी के अलावा, और बी को भी 1 पॉइंट नहीं मिला है। सो दैट इंप्लाइज दैट सी मस्ट हैव बीन दैट प्लेयर अगेंस्ट हुम दीप मस्ट हैव वॉन हिज मैच। तो यानी कि CD मैच का स्कोर लाइन हमें मिल गया, दैट मस्ट बी 1-2 फॉर श्योर।
क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि दीप के वाले मैच में दीप मस्ट हैव गॉट 3 पॉइंट्स एंड द लूजर मस्ट हैव गॉट 1 पॉइंट, और क्योंकि लूजर बी नहीं हो सकता, ए हो ही नहीं सकता था, तो ओनली पॉसिबल सिनेरियो इन दिस केस इज दैट सी मस्ट बी दैट पर्टिकुलर लूजर। तो सीडी मैच का स्कोर लाइन विल बी 1-2 एंड सी मस्ट हैव गॉट टोटल 6 पॉइंट्स, यानी कि 6 इज 5 प्लस 1 और प्लस 0 ऑब्वियसली। तो 0 कहाँ पे मिला होगा? 5 मिला है सी को अगेंस्ट अगेंस्ट ए, 5 पॉइंट्स मिले हैं, 1 मिला है अगेंस्ट डी, तो 0 पॉइंट्स मिले होंगे अगेंस्ट बी, यानी कि बी सी मैच का स्कोर लाइन भी क्लियर हो गया, दैट मस्ट बी 3-0। तो B has scored 5 points against C और B has scored 0 points against A, तो डेफिनेटली B must have scored 3 points against D, यानी कि BD मैच का स्कोर लाइन भी क्या आ जाएगा? दैट विल बी 2-1। ओके, वेरीफाई भी कर लेते हैं लास्ट में कि 4 मैचेस आए हमारे जहां पे कि 3-0 स्कोर लाइन है और 2 मैचेस आर देयर जहां पे कि 2-1 स्कोर लाइन है, तो हमारा पूरा का पूरा डेटा फिलअप हो गया। ओके, पॉइंट्स भी पता है, सारे मैचेस का स्कोर लाइन भी पता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स वर स्कोर्ड बाय अनीश? तो दैट आंसर इज इक्वल टू 10। Total 10 points were scored by Anish. Simple question, straightforward. Next question, what is the total number of games won by Chetan across all 3 of his matches? Games won पूछ रहा है, ध्यान देना, मैचेस नहीं, ठीक है, मैचेस वर ओवरऑल मैच, और हर एक मैच में देवर 3 गेम्स इन ईच मैच। So how many matches have been won by Chetan across all 3 of his matches? So 3 games against A, 0 games against B, and 1 game against D. So 3 plus 0 plus 1, that is equal to 4. So Chetan has won total 4 games overall. What is the ratio of number of games won by Anish to number of games won by Deep in the entire league? Again, games की बात कर रहा है, मैचेस की बात नहीं कर रहा. Games won by Anish and games won by Deep. So Anish has won total 3 plus 3, 6 games. Because 2 मैचेस में 3-0 से जीता है और एक मैच में 0-3 से आ रहा है, तो 3 plus 3 6 games in total for Anish. And for Deep, Deep का एक मैच व्हाइट वॉश हुआ है, 0-3 से वहां पे 0 आया है, और बचे हुए 2 मैचेस में एक में 1 और एक में 2, तो 6:3, और फाइनली 2:1 का रेशियो आएगा। ओके, कोइंसिडेंटली मैचेस में भी यही सेम रेशियो आएगा 2:1 का, बट अदरवाइज गेम्स का रेशियो 6:3, जो कि सिंप्लीफाई होकर 2:1 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत वॉन हिज मैच अगेंस्ट चेतन विद 2-1 स्कोर लाइन। तो भारत ने चेतन के स्कोर में क्या आया था? 3-0 वॉज द स्कोर लाइन एंड नॉट 2-1, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड, चेतन वॉन हिज मैच अगेंस्ट दीप विद 3-0 स्कोर लाइन, क्या ये करेक्ट है? अगेन चेतन और दीप वाले स्कोर में भी क्या हुआ? Basically, Deep has won and the score line was 1-2. So this is also incorrect. So both statements are incorrect. Answer will be neither 1 nor 2. Last question. If a player's efficiency rating is the points scored by him divided by number of individual games won by him in the league, who was the second highest efficiency rating? Who has the second highest efficiency rating in the league? So efficiency rating is equal to points scored divided by games won. तो कैलकुलेट करते हैं, ए बी सी डी के लिए क्या वैल्यू आएगा? ए हैज स्कोर टोटल 10 पॉइंट्स, बी 8 पॉइंट्स, सी 6 पॉइंट्स एंड डी 4 पॉइंट्स। गेम्स वॉन बाय ए इज इक्वल टू 6, गेम्स वॉन बाय बी, कितने गेम्स वॉन किए हैं बी ने? सो बी के केस में दैट इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट ए, 3 अगेंस्ट सी, तो 3 आ गया, और 2 अगेंस्ट डी, तो 3 + 2 5, 5 फॉर बी। डी के गेम्स थे 3, सी के नंबर ऑफ गेम्स वॉन कितने हैं? 3 अगेंस्ट ए, 1 अगेंस्ट डी एंड 0 अगेंस्ट बी, तो 3 + 1 4। So for A, that is 10 by 6, which is equal to 1.66. For B, that is 1.6. For C, 1.5. And for D, 1.33. Same order है. Second highest efficiency rating is that for B. Bharat. Option B will be the answer. Clear है बात? ठीक, सो दिस वाज आवर सेट फॉर टुडे। आई बिलीव कि इस सेट में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में होंगे। फिर भी कहीं कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, और फीडबैक जरूर कमेंट में शेयर करना। तुम्हें सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और तुमसे कितने टाइम में तुमने इस पर्टिकुलर सेट को कंप्लीट किया, सारे के सारे क्वेश्चन सही किए या कहीं पे कुछ गलती हुई। ठीक है, और सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। टेक केयर।